students, how are you? Hope all are fine and healthy. Today I am going to teach you history, chapter number 2, New Kings and Kingdoms. In this chapter, I am going to explain about the different dynasties that were prevailing during early medieval periods, and also about their administration, economy and social life. Okay, and these were the dynasty are Rashtrakutas, Gurjara Pratiharas, Palas, Chauhans and Cholas. But before explaining the chapter, first I will explain here the key terms. The first word is scramble. Scramble means struggle. Second word is Samantas, a title given to a powerful landlord who provided the king with resources. मीन्स बड़े बड़े जब किंगडम हो जाते थे तो उनको संभालने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को बड़े बड़े लैंडलॉर्डों को दे दिया जाता था, उनको कहा जाता था सामंत. ओके. थर्ड वन इज पैट्रन्स, अ पर्सन हु गिव्स फिनेंशियल और अदर सपोर्ट टू अ पर्सन. मीन्स किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो सपोर्ट दिया जाता था, दैट इज कॉल्ड पैट्रन्स. ओके. नेक्स्ट इज इवेंचुअली. इवेंचुअली मीन्स लास्टली. Now come to the another word, vassals, a person in subordinate position to another. Next, vigorous, strong, healthy and full of energy. Garrisoned, a fortified settlement with soldiers. Next is shrenis, association of merchants and craftsperson. Guilds, association. Next is ascendant, rising in power or influence. Cavalry, soldiers who fought on horseback. घुड़सवारी जिसको बोलते हैं ना, घुड़सवार मीन्स घोड़े के ऊपर जो चढ़कर लड़ाई करते हैं, तो दे आर नोन एज कैवलरी. श्रेष्ठिन्स, चीफ ऑफ द गिल्ड्स, जो क्राफ्ट्स पर्सन और मर्चेंट्स के जो एसोसिएशन होते थे उनको गिल्ड्स बोलते थे, और उनके चीफ को क्या बोला जाता था? श्रेष्ठिन्स. नेक्स्ट इज डिवास्टिंग. डिवास्टिंग मीन्स डिस्ट्रक्टिव. ओके. तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर chapters explanation. Open page number 9. So here we have to read about the emergence of new kings and kingdoms. The Gurjara Pratiharas, Palas, Rashtrakutas, Chauhans, the invasion of Ghaznavids or Turkish rulers, and Cholas. And we have to also read about the administration, economy and social life during this period. The period is early medieval period. Okay. Now, let us start the chapter. The early period of medieval India history was marked by the scramble for power among the various Indian kingdoms in the north. It was also a period of political uncertainty caused by foreigner invasions. ये जो early medieval period जो है वो क्या है, किसके बारे में बता रहा है कि छोटे छोटे डायनेस्टीज थे, वो इस टाइम में ज़्यादा पावरफुल होने लगे और उनके बीच में ऑलवेज स्ट्रगल होते रहता था, और जिसका फ़ायदा किन्होंने उठाया? फॉरेन इन्वेडर ने उठाया. और 10th सेंचुरी के बाद से लगभग यहाँ पर फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेशन करना शुरू कर दिए. ओके. नाउ कम टू द emergence of new kingdoms in north west and central India. नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन से किंगडम इमर्ज हुए और सेंट्रल इंडिया में कौन से किंगडम इमर्ज हुए और उनके पीछे क्या कारण था? लेट अस सी.
The 7th century saw the rise of chieftains, landlords known as samantas or subordinates in different parts of the Indian subcontinent. In due course of time, they acquire power and wealth, foundation of the Rashtrakuta dynasty. In the other hand, chieftains such as the Gurjara Pratiharas gave up their traditional occupation and successfully established their kingdom in Rajasthan. Here you are seeing a new word, samantas. सामंतास हुए जब बड़े किंगडम हो जाते थे तो पूरे राज्य को संभालना एक किंग के लिए थोड़ा मुश्किल होता था, तो वो अपने किंगडम को क्या करते थे, छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स के ऊपर जिम्मेदारी देकर मुक्त हो जाया करते थे। तो ये सामंतस जो होते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे और वो पर्टिकुलर एरिया में देखभाल करते थे अपने राजाओं के राज्य की। लेकिन यही सामंतस बाद में जब उनके पास पावर आने लगती है, काफ़ी पैसे हो जाने लगते हैं, तो ये अपने आप को किंग से ऊंचा समझने लगते हैं और उनके साथ विद्रोह कर नई नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। तो उसी में एक दंती दुर्गा नाम का सामंत था, जिसने चालुक्य डायनेस्टी में वह सामंत था, उसको उन्होंने डिफीट कर एक अपनी इंडिपेंडेंट पावरफुल किंगडम की स्टैब्लिशमेंट की और उसका नाम था राष्ट्रकूटास। ओके, विच डायनेस्टी? राष्ट्रकूटास डायनेस्टीज। ओके, now let us see the next topic, the tripartite struggle. You are seeing the tripartite struggle. What is tripartite struggle? Tripartite means it was the struggle of among the three dynasties. They were Rashtrakutas, Gurjara Pratiharas and Pallas. They were all shows their power to occupy the Kannauj. Kannauj that time a very powerful political center, as well as it was the very fertile land. So these dynasty were wanted to occupy that particular area, और जिसके कारण इन तीनों डायनेस्टी के बीच क्या होता रहता था, स्ट्रगल होता रहता रहा। आइए अब आपको इनके बारे में वन बाय वन डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि कौन कौन से राष्ट्रकूटास में कौन से थे राजा और पल्लास में कौन से राजा थे और गुर्जरा प्रतिहारस में कौन से राजा थे। हियर यू कैन सी द रूलिंग एरियाज ऑफ गुर्जरा प्रतिहारस। गुर्जरा प्रतिहारस के रूलिंग एरिया आप देखोगे तो here you see this is the area of Gurjara Pratiharas, this is the area of Rashtrakutas, and this is the Pallas areas, and you can see the central part of India and some western part of India were covered in Gurjara Pratihara. Rashtrakuta, some part of Rajasthan were also included in, and some southern portion is included in Rashtrakutas, and Pallas were Andhra, Odisha, Bihar, that area was Bengal, that area was included in the kingdom of Pallas. Now come to the first dynasty. The Gurjara Pratiharas ruled over western India, that is in parts of western and central Rajasthan and parts of central India. Their location made it possible to resist the Arab incursions. They had initially been local officials but had carved out principalities for themselves. The Gurjara Pratiharas had a long line of powerful rulers such as Nagabhatta, who ruled there 750 to 780. The founder of the dynasty
was Vastra Raja Bhoja, and Vastra Raja Bhoja was the founder of the Rashtra Gujara Pratihara's dynasty. Okay. Now the next dynasty is the Palas. The Pala Empire was founded by Gopala around 750. His empire extended over the states present day Bengal, Bihar, parts of the Odisha and Nepal. अभी आपको मैंने बताया मैप में दिखा के ये सारे पार्ट पूरे पलास डायनेस्टी में आते थे. Later under Dharampala and his son Devapala, the empire extended over present day Bengal, Kannauj, Odisha, Bihar, Assam, northern India and Nepal. You can see the eastern, now these states are in eastern part of India. The Tibetan chronicles inform us that Palas were the patrons of Buddhist learning, literature and education, donating generously Nalanda University, a major center of Buddhist center. ये जो पलास जो थे वो मीन्स बहुत लर्निंग, बुद्धिस्ट लर्निंग को और लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले थे, और उन्होंने नालंदा मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग का एक मेजर सेंटर था एंड दैट टाइम 900 CE to 1000 CE. एट दैट टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फ्लरिश टू मच, तो दे वर डोनेटिंग जेनरसली, स्वेच्छा से दान देते थे उस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े पैट्रन थे किसके, लिटरेचर के एंड बुद्धिस्ट लर्निंग के. एंड नालंदा एट दैट टाइम वाज द मेन लर्निंग सेंटर ऑफ द बुद्धिज्म. नेक्स्ट इज द धर्मपाला आल्सो established the famous Vikramshila Buddhist University. And Dharampala was who was? He was the successor of that Palas dynasty. Gopala, who was founded the Pala dynasty, and Dharampala was the successor of this Gopala. उनके बाद गद्दी में मीन्स एक डायनेस्टी कोई चलती तो सिर्फ एक राजा वहाँ रूल नहीं करता, उसके साथ साथ उनके पीछे बहुत सारे, उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा धीरे धीरे उस पर रूल करता. और यहाँ पर हम सभी राजाओं के बारे में डिस्क्राइब नहीं करते. जिन राजा के समय ज़्यादा कुछ फ्लरिश हुआ होता है या डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. अंडरस्टूड? Now come to the Rashtrakutas. The Rashtrakuta dynasty was founded by Danti Durga or Danti Varman in Deccan region, especially in the area of present day Maharashtra. पहले ही आपको बताया ये जो राष्ट्रकूटा है प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और गुजरात एंड मालवा के कुछ एरियाज को कवर करता था. द वर्ड राष्ट्र इन संस्कृत मीन्स territory, while Kuta means chieftain. Okay. Before acquiring the status of ruling dynasty in the Deccan, the Rashtrakutas were chieftains in central India. वो जब तक राष्ट्रकूटा में डायनेस्टी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, स्टेटस रूलिंग पार्टी नहीं बनी थी, तब तक उसके पहले वो कहाँ किसके अंडर में करते थे? सेंट्रल इंडिया, डेक्कन. दे वर द रूलिंग. Before acquiring the status of a ruling dynasty in the Deccan, the Rashtrakutas were chieftains in central India, means chief warriors होते थे. ठीक है. The capital of the empire was Malkhed or Maniakhed near modern Sholapur and Maharashtra. तो राष्ट्रकूटस का कैपिटल कौन सा था? मालखेड़ का. कौन सा था? मालखेड़, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है. Apart from the tripartite struggle, they were in constant conflict with the Chalukyas or Bengi. अब ये देखो इनकी स्ट्रगल, ट्रिपटाइट स्ट्रगल, ये मीन्स किसके किसके बीच ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल होता था? ये स्ट्रगल होते थे राष्ट्रकूटा, गुजरा पतिहारास और पलास के बीच. इसके अलावा भी दे ऑलवेज
conflict with Chalukyas of Vengi and Pallavas of Kanchi. चालुक्याज और पल्लवास जो डायनेस्टीज थे वो साउथ इंडिया के तरफ थे, उनके साथ भी इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द राष्ट्रकूटा रूल्ड द ऑलमोस्ट 200 years till the end of 10th century. Means we will say that here कि these dynasty were flourishing till 10th century, but afterward their decline started because they are always busy in struggle with others kingdom and it makes weaken their kingdom. अंडरस्टूड. ये इनको कमज़ोर बनाए. वो ऑलवेज लड़ाई में ही बिजी रहते थे, जिसके कारण उनका राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया. द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर्स वेर गोविंद III, who ruled 793 to 814, Amogvarsha 814 to 878, and Krishna III. You have to remember this three. Rashtrakuta rulers, great Rashtrakuta rulers were Govinda III, Amogvarsha, and Krishna III. The rock-cut cave temples at Ellora and Elephanта in modern-day Maharashtra are the legacy of Rashtrakuta rulers. उनकी विरासत है. आज हम जो एलोरा एंड एलिफेंटा देखते हैं वो महाराष्ट्र की जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र में आते हैं, ये एलोरा एलिफेंटा केव, ये किसकी विरासत थी, लेगेसी थी? राष्ट्रकूटा रूलर्स की. Now let us come the another dynasty that was flourishing during early medieval period in North India. They were the Chauhans. The Chauhan or Chamana dynasty, both are the same. Chauhan and Chamana's dynasty of Ajmer was established in the 11th century. Before established their dynasty, the Chauhans were vassals of the Gurjara Pratiharas. अब हमने देखा कि गुर्जरा प्रतिहारा जो थे, उनके जो वैसल्स थे, सबऑर्डिनेट थे, जो किंग के वो थे. One of the greatest rulers of the Chauhan dynasty was विग्रहराज. लेकिन वो किस तरह से राजा बनते गए, क्योंकि ये ऑलवेज किसके में बिजी रहते थे, लड़ाई में बिजी रहते थे. तो धीरे धीरे ये चौहान्स ने जो उनके वेसल्स थे अपने आप को इनसे अलग करना शुरू किया. जैसे जैसे ये पावरफुल होते गए, वो अपने मेन किंगडम से अपने आप को अलग कर इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते गए. तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी वाज विग्रहराज, हु कैप्चर चित्तौड़. उसने किसको कैप्चर कर लिया? चित्तौड़ को. पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट फेमस चौहान रूलर, असेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर इन 1177. मोस्ट फेमस Chauhan's ruler was Prithviraj Chauhan, who ascended in which year? In which period? Time, that is 1177. That year he ascended the throne of Ajmer. He followed a vigorous policy of expansion, wherein his most famous expedition was against the Chandels in Bundelkhand. He was always expansion policy. He was followed the expansion policy. अपने राज्य का धीरे धीरे विस्तार करना उनकी ये पॉलिसी थी. और इस एक्सपेडिशन में he was won against the चंदेल्स of बुंदेलखंड. बुंदेलखंड में राजा थे चंदेल राजा, उनको उन्होंने परास्त किया था. The events of Prithviraj reign have also been described in Prithviraj Raso, composed by his own court poet चंदबरदाई. चंदबरदाई के लिखे, एकदम इसको याद रखिएगा आप लोग. चंदबरदाई ने जो डिस्क्राइब किया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज, दैट इज पृथ्वीराज रासो, कंपोज्ड बाय हिज ओन कोर्ट पोएट. उन्होंने लिखे, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि पृथ्वीराज ने अपने एक्सपेडिशन में चंदेलों को हराया था. ठीक है. नेक्स्ट इज पृथ्वीराज चौहान वॉज इंगेज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल्स ऑफ तराई अगेंस्ट मोहम्मद गोरी in 1191 and 1192 respectively.
अब इसी पीरियड में मीन्स 10वीं शताब्दी के बाद के पीरियड में किसका आक्रमण हुआ? अ फॉरेन इन्वेडर महमूद गोरी ने आक्रमण किया। कौन? और ये जो बैटल है उनके बीच जो लड़ाई है उनको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराई एंड सेकेंड बैटल ऑफ द तराई। He was defeated and imprisoned after the second battle of तराई। फर्स्ट बैटल में उनकी जीत हुई थी पृथ्वीराज की, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराई he was imprisoned, he was defeated by him। मोहम्मद गौरी से वो हार गए थे। Now let us see the central administration. First we have to see here the king. Means अभी हमें क्या पढ़ना है कि ये सारे जो डायनेस्टी थी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी। सबसे पहले जो इकाई होती थी, पहला सबसे ऊपर जिन स्थिति होती थी वो राजा की होती थी, द किंग। अब उनकी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नाम दिया है, उनकी पोजीशन क्या होती थी, लेट अस सी। द किंग वाज द हेड ऑफ administration. He was the commander-in-chief of the army and head of the justice system. His position was hereditary, although rules of succession were not fixed. Means वही गद्दी पर बैठेगा ये नहीं होता था, लेकिन जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती जो राजा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसके बेटा, ये स्थिति होती थी। He used titles such as महाराजाधिराज एंड चक्रवर्ती, और इन राजाओं को महाराजाधिराज और चक्रवर्ती के नाम से, टाइटल के नाम से नवाजा जाता था। He had no contact with the power of other सामंतास। Now next the ministers। अब मिनिस्टर संभालने के लिए मिनिस्टर्स होते थे। अब मिनिस्टर क्या होते थे? दे वर द ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द किंग। वो किसको एडवाइस करते थे? किंग को। द महामंत्री वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ऊपर होता था वो महामंत्री होता था। अदर मिनिस्टर्स वेर अक्षापचालिका, रेवेन्यू मिनिस्टर जिसको बोलते थे, फिर संधि विग्रह जिसको फॉरेन मिनिस्टर कहते थे, और महाप्रतिहारा गार्ड ऑफ द रॉयल पैलेस, जिसको गार्ड ऑफ द रॉयल पैलेस, तो उनका नाम दिया जाता था महाप्रतिहारा। फिर उसके बाद राजा पुरोहित होता था, जो रॉयल प्रिस्ट होता था, जो दरबार का पुजारी होता था, उनको राज पुरोहित बोला जाता था। एंड महेसनापति, कमांडर ऑफ द आर्मी, इज नेम्ड एज महासेनापति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग नाम देखे। जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनको नाम दिया जाता था महामंत्री। जो अदर मिनिस्टर, जैसे कैबिनेट अलग अलग होते हैं, उनके पोर्टफोलियो होते हैं, तो उन मिनिस्टर्स में जो रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे उसको नाम दिया जाता था अक्षापचालिका। जो फॉरेन मिनिस्टर होते थे उनका नाम दिया जाता था संधि विग्राहिका। और जो गार्ड, रॉयल पैलेस के जो गार्ड होते थे उनका नाम दिया था महाप्रतिहारा। और जो रॉयल प्रिस्ट होते थे, दरबार के पुजारी होते थे, उनको नाम दिया जाता था राजा पुरोहिता। और जो आर्मी के कमांडर होते थे उनका नाम दिया जाता था, उनको बुलाया जाता था महासेनापति। Now next the territory। उनके क्षेत्र कैसे बटे हुए थे? पूरा का पूरा राजा, एक राजा ही पूरे किंगडम को नहीं संभालता था, उनको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता था। तो लेट्स अस सी व्हाट इज देयर। द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज वेयर डिवाइड था पूरा टेरिटरी को, एंड मंडलाज और विषायाज डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए जाते थे। द गवर्नर ऑफ प्रोविंस नोन एज उपारिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो गवर्नर होते थे उनको क्या बोला जाता था? उपारिका। और उनका काम क्या था? व्हाट इज हिज वर्क? कलेक्टेड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द आर्मी।
ठीक है। गवर्नर किसका हेड होता था? प्रोविंस का हेड। और जो किंगडम थे उसको किस भागों में डिवाइड कर दिया गया जाता था? प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स में। द हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज विषयापति। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज विषयापति। The vassal chiefs were independent but had to pay a fixed tribute as well as supply a quota of troops to the overlord. Otherwise, they were conflicts. So the vassal chiefs were independent but had no pay. तो यहाँ पर क्या बताया कि जो वॉसल्स चीफ्स होते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, लेकिन उनको एक फिक्स ट्रिब्यूट जो होता था देना पड़ता था, जैसे सप्लाई कोटा ऑफ ट्रूप्स टू द ओवरलॉर्ड, जो उनके हेड होते थे, जो राजा होते थे। अदरवाइज दे वर कॉन्फ्लिक्ट्स, अदरवाइज उनके बीच उनको संघर्ष करना पड़ता था, उनके साथ झगड़ा हो जाते थे। सिमिलर चीफ्स वेयर भोगापति। स्मॉलर चीफ्स जो छोटे होते थे, चीफ्स वॉसल्स जो छोटे वॉसल्स होते थे वो उनको कहा जाता था भोगापतिस, हु इवेंचुअली मर्ज विद द विषयापतिस। और वो किसके साथ मर्ज हो जाते थे? विषयापति। वो कौन होता था विषयापति? विषयापति इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? विषयापति। आपको मालूम है कि जो टेरिटरीज होती थी वो दो भागों में डिवाइड होती थी, एक भुक्तिस प्रोविंसेस और दूसरा था डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स के हेड को क्या बोला जाता था? विषयापति। तो ये जो भोगपतिस हैं वो लास्ट में किनके साथ इनका मर्ज हो जाता था? विषयापति के डिस्ट्रिक्ट हेड के साथ। ओके, नाउ कम टू द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती थी इन राजाओं की, इन डायनेस्टीज़ में? इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नंबर ऑफ वार एलिफेंट वेयर मेंटेन्ड। जो घुड़सवारी थी या हाथी सेना थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मेंटेन करते थे, पैदल सेना इन सब को। द पलास हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स। सबसे ज़्यादा वॉर एलिफेंट्स किनके पास था? पलास के पास। ये याद रखिएगा, पलास हैड द वॉर एलिफेंट्स। द गुर्जरा प्रतिहारास हैड द फाइनेस्ट कैवलरी। कैवलरी मीन्स घुड़सवार थे, उनके पास फाइनेस्ट कैवलरी थे। एंड द राष्ट्रकूटास हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स garrisoned बाय स्पेशल ट्रूप्स। garrison आपको बताया, ये फोर्टिफाइड जो महल होते हैं उनमें जो सैनिकों के भी रहने की सेटलमेंट्स होती है, व्यवस्था होती है, दैट इज़ नोन एज गैरिसन्ड। तो ये अलग अलग ये जो डायनेस्टी जो हमने मेन डायनेस्टीज़ पढ़े, प्रोमिनेंट डायनेस्टी उस पीरियड में थे, वो पलास, गुर्जरा, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास थे। तो पलास के पास किसकी सेना ज़्यादा थी? वॉर एलिफेंट ज़्यादा थे। गुर्जरा प्रतिहारास के पास कैवलरी ज़्यादा थे। राष्ट्रकूटास कैसे? उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स उनके पास थी विथ गैरिसन्ड स्पेशल ट्रूप्स उसमें होते थे। तो इस तरह से इन सभी डायनेस्टी की अपनी अपनी विशेषताएं थी। नाउ कम टू द विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। अब उनका विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय द ग्रामापति हु वॉज ऑल्सो द accountant. Along with him, village committees looked after local schools, roads, water tanks, temples and so on. तो यहाँ जो ग्रामपति होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था, वो क्या कहलाता था? ग्रामपति। who was also the accountant, और वो अकाउंटेंट भी होता था, हिसाब किताब रखने वाला। अब उनके साथ उनको हेल्प करने के लिए विलेज के कुछ कमेटी के लोग होते थे जो क्या काम देखते थे? लुक्ड आफ्टर द लोकल स्कूल्स, रोड्स, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स एंड सो ऑन। अब ये तो बात हो गई विलेज में। अब टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द टाउन
लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज वेयर एड्रेस्ड बाय द कोतवाल। कौन देखता था लॉ एंड ऑर्डर शहरों में? कोतवाल। टाउन कमिटीज एंड हेड ऑफ ट्रेड गिल्ड्स टुक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो ट्रेड गिल्ड्स के जो हेड होते थे, जिसको सृस्टिन्स कहा जाता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे। ओके, नाउ कम टू द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। अब इन डायनेस्टीज की सोशल इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? नाउ लेट अस सी। द कास्ट सिस्टम वॉज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। कास्ट सिस्टम जो था वो किस पर डिपेंड था? सोसाइटी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कास्ट सिस्टम था जो सोशल लाइफ का बेस था। ठीक है, द ब्राह्मणास एंड राजपूत, क्षत्रिय देख लो, हैड द हाईएस्ट पोजीशन। किसको हाईएस्ट पोजीशन समाज में मिला हुआ था? ब्राह्मण्स एंड राजपूत को। द वैश्यस टुक पार्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो वैश्यस थे, जिसको बोलते थे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, who took part in the local administration। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल करने का काम होता था इनके हाथ में। द इकोनॉमिक, अब उनकी इकोनॉमी क्या होती थी, क्या करते थे वो, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे, कैसे कमाते थे धन? तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। ट्रेड रिलेशन विथ चाइना, साउथ ईस्ट एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लरिश्ड। इसी शासन में जो ट्रेड रिलेशंस है वो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी होता था। तो ये भी इकोनॉमी का एक उनके का जरिया था धन कमाने का। ट्रेडिंग विथ अदर्स कंट्री। द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वेयर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। वो जो वर्ष के मसाले और टेक्सटाइल और प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, द मेन इम्पोर्ट्स कंप्राइज्ड हॉर्स, प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स। और वो इसके बदले में क्या मंगाते थे? इम्पोर्ट्स करते थे हॉर्सेस, अरब कंट्री से हॉर्सेस मंगाते थे, फिर प्रेशियस मेटल्स मंगाते थे, स्टोन्स मंगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्चेंट ऑपरेटेड थ्रू गिल्ड्स नोन एज श्रेणीज। जो उनकी एसोसिएशन थी उनको क्या कहा जाता था? श्रेणीज। गिल्ड्स को क्या कहा जाता था? श्रेणीज। द चीफ ऑफ द गिल्ड्स कॉल्ड श्रेस्टिन्स। जो उसके हेड होते थे उसको कहा जाता था श्रेस्टिन्स। ऑक्यूपाइड इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और उनका इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता था कहाँ पर? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स होते थे उनका हाथ एडमिनिस्ट्रेशन के रख रखाव में भी होता था। In this topic, I am going to explain about the Turkish invasions. Turkish invasion was happened during the medieval period, and after the 10th century, the decline of the different dynasties like Rashtrakutas and Gurjar, Pratiharas, Palas, there was a time of invasion of Turkish conqueror. Here, first Turkish conqueror was Muhammad of Ghazni. They are known as the Ghaznavids. The Ghaznavids. First Turkish conqueror was Muhammad of Ghazni. He was the ruler of his empire was in Ghazni. The present day it is in Afghanistan. He ruled over 998 to 1030 CE. Was a Turkish conqueror who established his empire in Ghazni. Now it is in Afghanistan. He raided India 17 times between
1001 and 1027 at places like Punjab, Mathura, Multan and थानेश्वर. इन प्लेसेस में उन्होंने 17 टाइम्स आक्रमण किया. How many times? 17 times. His most daring raids were at Kannauj in 1018 and Somnath in 1025. That is, कन्नौज इज़ द मोस्ट डेयरिंग रेड्स. बहुत हिम्मत करके मीन्स डेयरिंग, हिम्मत वाला उनका ये इन्वेशन था, आक्रमण था. और कन्नौज उस मिडिवल पीरियड में एक बहुत ही पावरफुल और पॉलिटिकल सेंटर था. ठीक है, आपको भी मालूम है कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल ऑलवेज, जो 3 डायनेस्टी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ थे, राष्ट्रकूटाज और गुर्जरा प्रतिहाराज और पल्लवाज, इनके लिए कन्नौज के लिए सुपरमैसी, कन्नौज पर अपनी सुपरमैसी दिखाने के लिए वह हमेशा झगड़ा करते रहते थे. Now next, Mahmud did not wish to rule over India. He plundered India and carried away wealth, artisans and learned men. But Mahmud of Ghazni was not rule over India. वो भारत में राज्य करना नहीं चाहता था, ओनली भारत को लूट कर, और वो अपने साथ यहाँ से बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारे आर्टिसंस और लर्नड मैन को अपने देश अफगानिस्तान ले गया. Mahmud was closely associated with the rebirth of Iranian culture. उसको इरानियन कल्चर को उसने फिर से जीवित किया. विद द वेल्थ टेकन फ्रॉम इंडिया, ही डेकोरेटेड द पैलेसेस, मॉक्स एंड टॉम्स इन गजनी. उन्होंने यहाँ से लूटकर जो धन संपदा ले गए, यहाँ से लूटकर जो आर्टिसंस को ले गए यहाँ से, और बहुत सारे लर्न मैन को ले गए, उन्होंने फिर से अफ़गानिस्तान जाकर, ईरान जाकर इरानियन कल्चर को डेवलप किया. Many scholars resided at his court, among them Firdausi, author of Shahnama. We remember the Firdausi, the author of Shahnama, was the most famous. उनके स्कॉलर जो थे उनके कोर्ट में, उनमें से बहुत प्रमुख कौन थे? फिरदौसी, जिन्होंने क्या लिखा था, कौन सी बायोग्राफी लिखी थी महमूद की, उसका नाम था शाहनामा. Mahmud's attack were devastating nature as they showed the weakness of the existing kingdoms and paved the way for the future invasion. ये बहुत important है. महमूद attacks were devastating in nature, बहुत उसने डिस्ट्रक्ट किया. और साथ ही साथ इससे एक बात और पता चली कि जो इंडियन किंगडम्स हैं वो, उनकी जो पॉलिसी है वो कितने वीक है. ये बात भी फॉरेन इन्वेडर्स को पता चलने लगा, और इस तरह से वो रास्ता, नॉर्थ वेस्ट का जो रास्ता था वो आक्रमणकारियों के लिए खुल गया, क्योंकि उन्हें यहाँ के किंगडम्स के बारे में और यहाँ के राजाओं के बारे में पता चला कि हाउ दे आर वीक इन द सेंस बिकॉज दे ऑलवेज स्ट्रगल विथ ईच अदर्स. एक दूसरे से वे खुद ही लड़ाई करते रहते थे. दे डू नॉट keep themselves together or unite. Understood? Now next is Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. Now the Muhammad Ghori was the another conqueror of Ghazni. He ascended the throne of Ghazni in 1173. 1173. He conquered Multan and route to Delhi and Gangetic Valley and made Punjab his base. वो किसको विजय प्राप्त करता गया? मुल्तान से लेकर दिल्ली तक एंड गंगेटिक वैली. गंगेटिक वैली जो गंगा के जो एरियाज़ थे उनको कब्जे में करता हुआ, और अपने जो बेस उसने किसको बनाया? पंजाब को. अराउंड दिस टाइम Prithviraj Chauhan ascended the throne of Ajmer, defeated the Chandels and occupied Delhi. At this time, earlier we read that it was the period of decline of the prominent dynasty, and other Rajputs emerged in this small kingdom. They were emerged during this period. So
Prithviraj Chauhan, one of them, who throne of Ajmer, defeated the Chandels and occupied the चंदेलों को हराकर उन्होंने दिल्ली को ऑक्युपाइड किया। उसने क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी, एक्सपेंशन पॉलिसीज़ थी, अपने राज्य का विस्तार करना। तो पृथ्वीराज जब गद्दी पर बैठे ड्यूरिंग 11th सेंचुरी तो अजमेर में, तो उस समय उन्होंने अपने राज्य के विस्तार में चंदेलों को हराकर दिल्ली को ऑक्युपाइड किया। ठीक है, throne of Ajmer defeated Chandels and occupied Delhi. Muhammad Ghori came into conflict with Prithviraj Chauhan, both desiring the control of the Gangetic Valley and Punjab. तो जैसे उनका एक्सपेंशन पॉलिसी थी, पृथ्वीराज वॉज द एक्सपेंशनिस्ट, विस्तार करने वाले नेतृत्व, तो इनके बीच मोहम्मद गौरी और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होनी शुरू हो गई। तो इनके बीच फर्स्ट बैटल कहाँ हुआ? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई इन 1191 वॉज वोन बाय पृथ्वीराज चौहान। और इनके बीच फर्स्ट जो बैटल हुआ, लड़ाई हुई, वो कहाँ पर हुई? तराई में इन 1191। एंड इस बैटल में किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की। बट द सेकेंड बैटल ऑफ तराई इन 1192 लेड टू मोहम्मद गोरीज विक्ट्री एंड हिज कंट्रोल ओवर दिल्ली, बिहार, बंगाल एंड गंगा यमुना दोआब। ये जो गंगा यमुना की जो मैदानी इलाका था, उन पर उनका अधिकार हो गया। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराई विच वॉज हेल्ड ऑन 1192, Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan and he controlled over Delhi, Bihar, Bengal and Ganga Yamuna Doab. After the battles of Tarai, Muhammad Ghori returned to Ghazni, leaving the control of his Indian territory in the hands of his trusted slave Qutubuddin Aibak. But बैटल्स को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी, ही केम बैक गजनी, बट ही ascended, he leave his kingdom in the hands of his one of the slave name of Qutubuddin Aibak. Afterwards, the Mamluk dynasty was also established by Qutubuddin Aibak. We will read in next chapter. Delhi Sultanate started from the Muslim kings started to rule over India after this battle. Understood?